Dear students, today we are going to discuss about the second lesson of our civics book, federalism. Dear student, first of all, what is the definition of federalism? It is a system of government in which the power is divided between the central government and state government. Or you can say, in this system, some powers from the central government are taken and these are distributed among the state government. There are two types of federation. There are two type of government. One is the federation and another is the unitary. बेटा फेडरेशन सिस्टम में एटलीस्ट देर वुड बी टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इन यूनिटरी सिस्टम देर वुड बी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. In unitary system there would be one government for the whole country. This government, that is also known as union government, is responsible for few subjects of common national interest, while the government for states, that is the second level of government, they are responsible for the day-to-day administration of the state. Central government, but you know that, cannot order to the state governments, and state governments are not answerable to the central government. Or in federal system there would be at least two levels of government. Central government for the whole country, that is responsible for the issues of national importance, while state governments for the different parts of country, and they are responsible for the day-to-day administration. But you know that central government cannot order to the state governments. It means state governments are not answerable to central government. Now we are going to discuss about the unitary form of government. In unitary system, at least there would be only one level of government, or maybe the second level of government, but these second level of government are not independent. They are subordinate or they are answerable to the central government. Now we are going to discuss about the different features of federalism. You know that in federalism at least there would be two levels of government or two tiers of government. One for the whole country and another for the different parts of a country. Then we are going to discuss about the second point or second feature of federalism. Different levels of government or tiers of government rule over the same citizens, but they have their own jurisdiction. For example, we are living in Haryana, but you know that we are ruled over, या हमारे ऊपर रूल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज हरियाणा गवर्नमेंट. Third feature of the federal government is jurisdiction of the respective level of government are specified in the constitution. It means different level of government, that is the central government or the state government in federal system, their powers, their duties are specially mentioned into the constitution. Fourth feature of the federal system is the fundamental provision of the constitution. इट मीन संविधान के मूलभूत ढांचे में यदि कोई चेंज करना है तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती. इसके लिए दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट से कंसेंट होना ज़रूरी है, सेंट्रल और उसके साथ कम से कम 50% स्टेट्स. थर्ड या फिफ्थ, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. यदि कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट एज ई एम्पायर काम करता है और डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट्स हैं उसकी पावर्स के बारे में बताता है. सिक्स्थ, सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू. सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होगी, स्टेट गवर्नमेंट को कहाँ से इनकम होगी, इसके बारे में क्लियर कट पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है. इट मीन्स वो फाइनेंशियल वे से एक दूसरे से बिल्कुल ऑटोनोमस है. देन ड्यूल ऑब्जेक्टिव. फेडरल सिस्टम है, इसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं. पहला, इससे तो देश की यूनिटी प्रमोट होती है और सेकंड, रीजनल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट किया जाता है. Now we are going to discuss about the two kinds of root. अर्थात there are two type of federation. One is the coming together federation. Coming together federation में छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो आकर एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं. इसके एग्जांपल अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है. इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, सभी को इक्वल पावर होती है और इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली पावरफुल होते हैं. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें डिफरेंट पार्ट्स को प्रशासनिक सुविधा के लिए एक जगह अरेंज किया जाता है. इसके एग्जाम्पल हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. यहाँ पे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनके बीच में पावर अनइक्वल होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की बजाय ज़्यादा पावरफुल होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्री टीयर्स ऑफ फेडरेशन इन इंडिया. You know that in India there are three levels of government. One is the central government or union government. Second is the state government, and third one is the
पंचायत इन विलेजेज एंड म्यूनसिपलिटीज इनटू सिटीज, और यू कैन से लोकल गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में आपने पढ़ा होगा कि लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। यूनियन लिस्ट में बेटा नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। इन सब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही ये डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इसी प्रकार फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और आपका कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब इसी में आते हैं। जो सेंट्रल आपकी लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है, इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। देन स्टेट लिस्ट इट इज़ हैविंग 61 सब्जेक्ट्स। इसके अंदर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। ओनली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल्स बना सकती हैं। इसमें जैसे सब्जेक्ट्स हैं पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स। कंकरेंट लिस्ट इट इज़ हैविंग 52 सब्जेक्ट्स। इसमें बोथ और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही नियम बना सकती हैं, बट कोई इश्यू अराइज होता है तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। देन रीजन्स फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन के रीजन्स क्या हैं? यू नो दैट इंडिया इज ए बिग कंट्री, so it is essential to have an elected government at the local level. Second, local people have better knowledge of their local problems, so वो कम खर्चे में चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। थर्ड, लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज़, लोकल लोगों को अच्छे आइडियाज़ होते हैं कहाँ पैसा खर्च किया जाए और कैसे चीज़ों को इफेक्टिव वे से मैनेज किया जाए। कॉमन सिटीजन्स कैन बी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट में कॉमन सिटीजन्स लोकल पीपल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड कर लेते हैं, तो बेटा वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान्स प्रॉपर हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स वगैरह को प्रॉपर मैनेज करने में मदद करते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है वो 3 टीयर्स की। ग्राम पंचायत, ये एक गांव भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ गांव भी या ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो सकता है। ग्राम समिति दैट इज आल्सो नोन एज पंचायत समिति, दैट इज आल्सो नोन एज मंडल समिति, ये मिडल लेवल पे होती है। इसके हेड चेयरमैन कहलाते हैं। ग्राम पंचायत का हेड सरपंच कहलाता है। जिला परिषद ये इंटायर डिस्ट्रिक्ट पे होती है, इसका हेड जिला प्रमुख कहलाता है। देन इन अर्बन एरियाज, जो लार्ज अर्बन एरियाज हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एंड जो स्मॉलर अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं। Then we are going to discuss about important features of the local government in India. बेटा it is mandatory to hold regular elections to the local government. आपने पढ़ा होगा अमेंडमेंट नंबर 73, अमेंडमेंट नंबर 74, जो कि 1992 में पास हुए लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड। उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा 1/3 पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। एक स्टेट्स को फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टेट में फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग की गई है। पंचायतों को 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं। आपने देखा होगा 11th शेड्यूल है दैट इज़ रिलेटेड टू विलेजेस और लोकल रूरल गवर्नमेंट, एंड 12th शेड्यूल है दैट इज़ रिलेटेड टू लोकल अर्बन गवर्नमेंट। एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन भी सेटअप किया गया है जो इसके लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराता है। पंचायती राज सिस्टम में आपने देखा होगा विलेज लेवल पे बनेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जैसे पंच एंड सरपंच। ग्राम सभा में गांव के सभी वोटर्स होते हैं, और पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच, और ग्राम सभा का हेड भी सरपंच। ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, पंचायत समिति भी कहते हैं। इसके मेंबर्स पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस वन।